محبت جو کرتے ہیں, دیٹ از دی ویری پاورفل ورڈ ہے کہ محبت کرتے ہیں, وچ مینس فری ول کے ساتھ کرتے ہیں, کوورشن نہیں ہے. اتنی محبت کرتے ہیں, اور وہ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ آفر ہوا, ایوری تھنگ, ہر چیز ان کو آفر ہوئی, اور سارے پروسیس میں وہ ساری رات جاگ کے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, ہماری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. اتنا زیادہ پاس ہونے کے باوجود جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گھر میں چراغ میں جو تیل ڈالنے کے لیے ہوتا ہے نا, تھوڑا ریزرو رکھا, وہ بھی نہیں ہے. ناٹ ایون دیٹ, آل دیٹ ٹو فار واٹ؟ میرے لیے رات کو جا کے دعا مانگ رہے ہیں, میرے لیے پاؤں سوج گئے ان کے, میری بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. اتنا کچھ جو ان کو آفر ہو سکتا تھا سب کچھ ریجیکٹ کر دیا. اور ہلو جی ہیلو السلام سر. علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی, آپ سنائیں. اللہ کا شکر جناب, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, تو میں فرمائیے سر. آپ کی پوڈ کاسٹ کافی ٹائم سے سن رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جی, تو میں میرے پہلے تو میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں کہ جی وہی میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ میں کیا ہوں. میں آپ کہہ لیں میں ٹرانزیشن میں ہوں, یعنی کہ میں مسلم تھا, میری فیملی مسلم ہے, اور ابھی بھی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی مسلم ہی کرتا ہوں. بٹ یو کین سے کہ ایگنوسٹسزم کی طرف جا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اوکے. کچھ بیسس بتائیں گے اس کی ہمیں, کیا کس چیز آپ کو اس طرف پروپیل کر رہی ہے؟ اٹس جسٹ کہ بہت سی چیزیں اسلام میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. ابھی میں پریپیئرڈ نہیں آیا ہوں ٹو بی آنیسٹ ود یو. میں بحث تو دیکھیں, جو آپ جیسے بھائی ہیں نا, میں کبھی بحث نہیں کرتا, بیکاز آئی ایم جینوئنلی انٹرسٹڈ کہ کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کو پروپیل کرتی ہے اوے فرام ریلیجن, اور پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں, اور موسٹلی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہی سامنے آتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم پیپل, کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم تھیولوجی جو ہماری جس لینگویج میں ہے اس لینگویج کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, یا اگر وہ لینگویج نہیں آتی تو پھر بھی بہت سے ادر آپشنس ہوتے ہیں, ان کو ایکسپلور نہیں کرتے. ایک روایتی طریقے سے پڑھتے ہیں نا ہم, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں ٹو میک سینس آف وٹ وی بین ٹوٹ اگینسٹ وٹ دا ماڈرن ورلڈ پریزنٹس. تو اس میں انسان اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہے. لیکن کنورسیشن کے دوران پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, وہ دور ہو جاتی ہیں, اینڈ پیپل کم بیک ٹو ریلیجن. میں صرف اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیر از نو ڈیبیٹ ود یو سر. جی چلیں, تھینک یو. نہیں ابھی تو کافی سال ہو گئے, یو نو آلویز بین کوشچننگ, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب نہیں ملتے آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے ایون مولانا سے یا مولوی سے جو ہوتے ہیں ٹپیکل مولویز, اگر آپ ان سے کچھ ایسے کوشچن بھی پوچھ لو تو وہ آپ پہ سیدھا لیبل لگا دیتے ہیں. چلے میں ذرا سے گزارش کروں گی کہ کسر بھائی سے مین بات کریں گے. آپ کی ایج معلوم کر سکتے ہیں بھائی؟ جی میں 25 ہوں. 25. ڈاؤٹس کب سے آنے شروع ہوئے, آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ کافی ٹائم ہو گیا. ابھی تو یو نو اٹس آن اینڈ آف, میں پرابلی میرے اے لیول سے 18 17 18 ایئرز, یو نو 17 18 ایئرس سے. آپ پریکٹسنگ مسلم تھے, یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھا کرتے؟ ہاں, میری فیملی کافی ریلیجیس ہے, کافی کنزرویٹو فیملی ہے. آپ کا پوچھا تھا, فیملی کا نہیں پوچھا. تو آف کورس فیملی کا انفلوئنس ہوتا ہے نا, تو میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جب میرا اس طرح کا براٹ اپ تھا تو میں تھا یو نو ان اے وے. لیکن جی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے پورا قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے یا کچھ نہیں, لیکن اپنی طرف سے جو میں نے حدیث وغیرہ ڈھونڈی ہیں یا جو قرآن پڑھا ہے, یعنی جتنی یو نو, اور پھر جو کوشچن آتے ہیں آپ ان کے آنسر ڈھونڈنا چاہتے تو آنسر نہیں ملتے ہیں, تو پھر یو نو اس طرح. لیکن میں کسر بھائی سے بات کروں گی. کسر بھائی موسٹلی جو میرا بھی اس فیلڈ سے تعلق رہ چکا ہے, میں نے نوٹس کیا کہ جب بچے اے او لیولس میں جاتے ہیں اور کچھ ان کا ایک ڈفرینٹ مینٹالٹی ہو جاتی ہے, تب ان کو اس طرح کے کوشچنس ان کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں, اور موسٹلی جو لڑکے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پر زیادہ ٹرانزیشن کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے ان سارے نارمس کو اور سب چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو اس پر بھی بات کیجیے گا. جی نہیں, یو ڈونٹ بلیم دیم. ہم پاکستان میں ایجوکیشن پالیسی پہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہم نے وہ کنٹینٹ دیکھا ہے جو اس عمر میں فیڈ کیا جاتا ہے, ایون اس سے پہلے فیڈ کیا جاتا ہے. یہ بڑا معجزہ ہے کہ صرف کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں تشکیک آتی ہے یا اسکیپٹسزم آتا ہے, سب کے ذہن میں نہیں آتا. اٹس ویری مچ ڈیزائنڈ آن دی اینٹی ریلیجیس پریمیسز. بہت اس میں باعث ہیں, لیکن وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ اس کو پاکستان میں ضرور ٹھیک کریں گے, ریشنلٹی کی بیس پہ کریں گے. بٹ میں اپنے بھائی سے میں جاننا چاہوں گا تھوڑا بٹ مور کہ جو انہوں نے وہ, آئی مین وٹ واز, اگر ایک چیز کوئی آپ کو اگر ایک چوز کرنی ہو کہ
that one thing जिसने आपको skeptic बनाया, what would that be? Like basic God का concept, you know, कि like आप मेरे से expect करते हो कि जो 14 साल पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, अब मैं like उनसे इतनी मोहब्बत करूं और like इतनी उनके लिए जान भी निछावर कर दूं और इस तरह की चीज़ें, और फिर मैंने जो अपने सराउंडिंग में आशिकाने रसूल देखे इतने जो you know मारने पे उतर आते हैं, भाई किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है अगर कोई कुछ कहता है like ठीक है आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लेकिन आप जो ये कत्लो गारत पे उतर आते हैं, और फिर जो बेसिक मदरसास में प्रीचिंग होती है, like इतनी सारी चीज़ें हैं आई थिंक जो फ्लॉड हैं बेसिकली, you know. ओके ये पहली बात जो कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करूँ, वेल ऑब्वियसली तो हमारे ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत तो हम करते हैं बिकॉज मोहब्बत जो करते हैं दैट इज़ दी इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड है कि मोहब्बत करते हैं, विच मीन्स कि फ्री विल के साथ करते हैं, कोवर्शन नहीं है, इतनी मोहब्बत करते हैं। और वो क्यों करते हैं पता है आपको? और मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ ऑफ़र हुआ, एवरीथिंग, हर चीज़ उनको ऑफ़र हुई, औरतें, पैसे, सरदारियाँ, दारुल नदवा, उनका जो एक तरह का पार्लियामेंट आप कह लें, उसके अंदर प्लेस, यानी कि वो जो एक सोच हो सकती है ना उस ज़माने की कि आपको लिटरली जैसे आज आपको दे दिया जाए अपनी मर्ज़ी का आपको एक पैकेज ज़िंदगी का कि आप DHA में घर ले लें, गाड़ी जो आपको चाहिए आप वो ले लें, जिस लड़की से आपने शादी करनी है आप करें, गवर्नमेंट में आपका हिस्सा, यानी कि इमेजिन के ऑल ऑफ सडन हमारे लालू भाई जो हैं ही बिकम्स द बॉस, राइट। एंड ये सारे का सारा ऑफर होने के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह एक है, गरीब पे तुम जुल्म नहीं कर सकते, लोगों को पकड़ के गुलाम बना लेते हो ये तुम नहीं कर सकते, सूद का निज़ाम है तुम लोगों ने इस्तेहसाल किया हुआ है तुम नहीं कर सकते। इसके ये अब वो सारी चीज़ें जो ऑफ़र हो रही थी वो ऑफ़र नहीं हो रही, बल्कि जो उनके पास चीज़ें हैं वो सारी ले ली गई। जब हिजरत की तो पीछे उनकी जितनी भी एसेट्स बहुत कम थे, लेकिन उन सब पे कब्ज़ा कर लिया गया। हिजरत कितनी मुश्किल से की गई, वहाँ पे जाके नया सिस्टम डेवलप करना, फिर भी जंगें उन पे मुसद्दत की गई। एंड इस सारे प्रोसेस में वो सारी रात जाग के वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पास होने के बावजूद जब उनकी डेथ होती है तो घर में चिराग में जो तेल डालने के लिए होता है ना थोड़ा रिजर्व रखा, वो भी नहीं है, नॉट इवन दैट। कंसिस्टेंटली हमें रवायात मिलती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने या आपकी फैमिली ने कुछ दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंटली पेट भर के खाना खाया हो, यानी कि ऐसा हुआ कि एक दिन पेट भर के खाना खाया, दूसरे दिन खा लिया, तीसरे दिन खा लिया, लेकिन चौथे दिन फिर बात फागों पे आ गई, पानी पे आ गई, खजूर पे आ गई, एंड दैट्स दैट। ऑल दैट टू फॉर व्हाट? मेरे लिए रात को जाग के दुआ मांग रहे हैं, मेरे लिए पाँव सूज गए उनके, मेरी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। इतना कुछ जो उनको ऑफर हो सकता था सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। और हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में सिर्फ वंस एंड ओनली एक ही दफ़ा ऐसा हुआ कि 23 ईयर्स में एक सिविलाइजेशन ऐसी खड़ी कर दी जो वर्चुअली क्राइम फ्री है। न इससे पहले हुआ न इससे बाद में हुआ। हम प्यार इसलिए करते हैं कि व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस इज नथिंग। I mean, इसमें अगर आप एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड करते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में, ये रिकॉर्ड किया इकबाल ने कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो ये कहते हैं नाउ वी आर कटिंग इनटू जो मौजज़ा है उस पे मिरेकल कि अल्लाह के रसूल को मेराज अता हुई। तो हमारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उनको दिखाया गया कि दोज़ख कैसी है, उनको जन्नत में भेजा गया कि आप उसको एक्सपीरियंस करें वो कैसी है। एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इज़ डज फॉर द पर्सन डज कि अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए, जिसके एवज़ इंसान को जन्नत मिले। अल्लाह ताला को जन्नत ज़ाते खुद एक मटीरियलिस्टिक चीज़ लगती है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि अल्लाह राज़ी हो गया और जो बेस्ट चीज़ अल्लाह आपको देना चाहते हैं वो आपको मिल गई है। उन्होंने वो सारे का सारा कुछ पा लिया, सारे का सारा कुछ, लेकिन वो इस ज़मीन पे वापस आ गए। तो हमारे वो सूफी बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो कभी वापस ना आता। जिस पे इकबाल ने अपना तबसरा ये दिया है कि एक नबी में और एक उम्मती में यही फ़र्क होता है कि नबी अपनी उम्मत के लिए फिर वापस आ जाता है। तो हम प्यार क्यों ना करें फिर? Why should we not love the man who has sacrificed virtually everything, हर चीज़ इंसानियत के लिए, हमारे लिए, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो रात को उठ के दुआ मांग रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, सिस्टम दे दिया, सारा कुछ कर दिया। किसी भी आप बदतरीन इस्लामोफोब से पूछें कि आपकी जो दावत है उससे
पहले का जो अरब कल्चर था, जो औरतों के साथ हो रहा था, जो गुलामों के साथ हो रहा था, जो सोसाइटी जिस तरह से रन कर रही थी और जो बाद में थी, what is better? आपको बद से बदतरीन इस्लामोफोब भी बताएगा कि सिस्टम जो उन्होंने दिया था वो था। जी कैसर भाई देखें आप, why should we not love them? देखें आप सही बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मुझे जो समझ आती है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं सोचता हूँ वो ये है कि रिलीजन एक लाइक एवोल्यूशनरी नीड थी, बेसिकली टाइम की नीड थी, और उस टाइम पे मैं कहता हूँ इस्लाम बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है। 1400 साल पहले आप कह लें कि हाँ काफ़ी नई चेंजेस लाए, जो ऐसी चेंजेस लाए जो सोसाइटी में नहीं थी, लेकिन और अब अगर आप, और सारी पॉइंट्स आप जो कह रहे हैं चलें वैलिड समझते हैं, लेकिन आपके लिए उसमें फिर ईमान ये ज़रूरी है ना कि आप ये भी समझेंगे हाँ ठीक है इस्लाम इज़ 100% ट्रू, कि इस्लाम में कोई मसला है ही नहीं, और फिर जो लिखा है वो सब सच है, वो वैसा का वैसे ही है। लेकिन इसी से ही जो आप पर्सनालिटी बता रहे हैं वो चले एक जगह ठीक है कि वो सब है, लेकिन उसके कॉन्ट्रडिक्टरी भी काफ़ी ऐसी हदीस या रिवायतें हैं जो कहती हैं कि बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई हैं, यानी कि जैसे कि आई थिंक एक ब्लाइंड कोई हदीस थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उसमें कोई ब्लाइंड बंदा आई थिंक अपनी वाइफ या अपनी लॉन्डी को आई थिंक मर्डर मार देता है सिर्फ इस बात पे कि आई थिंक वो इस्लाम नहीं कबूल करती है, वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मानती, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये लाइक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जांपल, लेकिन इस तरह की और भी चीज़ें हैं। चलिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि अब आपने ये बातें कही ना इवोल्यूशनरी डी, उसमें मैं आना चाहूँगा, लेकिन लेट्स रिवर्स फ्लो में हम जाते हैं। जो आपने बताया कि वो मुसलमान नहीं होती थी, हाँ। और उसको कत्ल कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अप्रूव किया। नाउ द क्वेश्चन देयर इज कि इस रिवायत में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगती है कि ये ठीक नहीं है, अगर वो रिमूव अगर वो ना हो तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ बाकी ठीक है। हाँ लाइक पहली बात तो किसी को अगर कोई भी बिलीव करता हो या कोई अगर वर्बली किसी को भी अब्यूज करे उसकी सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ड्यू प्रोसेस था ही नहीं, यानी उसने उसको मार दिया, ना कोई कोर्ट हुआ, ना कोई सेशन लगा, उसने उधर ही मार दिया, और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात की जाके, तो उन्होंने आगे से कह दिया कि हाँ ठीक है। यानी कि जो आपका ये आपने कहा कि उसमें था कि वो ईमान नहीं ला रही इसलिए मार दिया, सो दैट इज नॉट द केस। हाँ या क्या कह रहे हैं कि नहीं, यानी कि ड्यू प्रोसेस नहीं था, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने पहले कहा ना कि वो ईमान नहीं ला रही थी तो इसलिए मार दिया, तो इसमें ईमान लाने ना लाने वाली कोई बात नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? कि उसको मारने की वजह ये नहीं थी कि वो ईमान नहीं ला रही थी। जी ईमान नहीं ला रही थी, और आई थिंक शायद वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला कह रही है। हाँ बिल्कुल, अब आप ठीक पहुंचे हैं, इसमें ईमान लाने या ना लाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ ब्लास्फेमी कर रही थी, बार बार कर रही थी, दैट इज ट्रू। और उसके बाद वाकया क्या होता है कि अगले दिन खबर जाती है कि इस तरह से एक वाकया हुआ है, अल्लाह के रसूल पूछते हैं भाई ये किसने किया, उठ के कहते हैं जी मैंने किया। अब हमने इस पे पूरी एक्सट्रीम की हुई है, ये जो इंडिया में हुआ था इस तरह का वाकया, जो टेलर था उसको मार दिया था, कि ये इस्लाम का जनरल प्रिंसिपल है ही नहीं, इसलिए कि आप खबर वाहिद से आप शरीयत का कोई प्रिंसिपल डिराइव नहीं करते हैं। इस पे जो बात है वो अप्रूवल की नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है जो भी ब्लास्फेमी करता है आप उसको मार दें, ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती तो काब बिन अशरफ उससे ज़्यादा गुस्ताख कौन था, उसको सज़ाए मौत इसी चीज़ पे मिल जाती, लेकिन उसको इस पे नहीं मिली, उसको इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस पे मिली, इंसाइटमेंट ऑफ वॉर पे मिली। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी वो इस पे ये कहा था कि इस पे अगर मुझे ठीक याद आ रहा है कि इस पे दैयत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है आप उसको समझें कि जो इस्लाम में जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है कि आप कभी भी खबर वाहिद को ये खड़े होकर आप नहीं कर सकते। और ये जिसकी भी जो रवायत जो है ये भी आप जहन में बात रखें कि इसके पीछे भी जो होना तो ये चाहिए था कि बात मजमे में, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी समझनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दैट वर्क्स। इसमें जितने लोग वहाँ मजमे में बैठे हुए थे, अगर ये इस्लाम का जनरल प्रिंसिपल होता कि कोई गुस्ताखी करे तो आप उसको कत्ल कर सकते हैं, तो उस मजमे में जितने लोग बैठे थे उन सब से हमें जगह जगह से हमें मिलनी चाहिए थी रिवायतें कि हाँ भी हम वहाँ बैठे थे, ये भी हुआ वो भी हुआ, पर वी डोंट सी दैट एनीवेयर इन इस्लाम। व्हाट डू यू थिंक दैट इज द केस? यस कैसर भाई, ये खबर वाहिद है। सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करूंगा आपको, ठीक है? सो सॉरी इसमें काट रहा हूं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।